चलिए let me start. I guess everybody must have come. Good evening, Basil. Everybody must have come. Let me check. Bushra, Basil, Mithun, Manisha. They all have come. Okay, bachcho. So this is linear equations in two variables. In the previous class, we uh, just finished it off just by understanding what is linear equation, what we mean by linear equations in two variables, and all that, right? I already mentioned in the previous class is that if you have a linear equation in two variables, then you always require two different equations to solve the linear equations in two variables. Number of C, number of equations required is equal to number of variables. If we have two variables, we always require two equations to solve the linear equations, or if we have three variables, we will require three equations. If we have two variables, we will require two equations. Here we are studying about linear equations in two variables, so we always require two variables, two equations, right? See here, let us suppose the first equation is something a1x and plus b1y and plus c1 is equal to 0. As we know that the standard form of linear equations in two variables is ax plus by plus c is equal to 0. Using this standard form, we have just let me give some time. Actually, I'm getting a problem with my pen tablet. So wait a minute, wait a second. Thank you for showing uh, patience with me.
Yes, now are you getting my voice? Since actually my connection was interrupted, that's why you would not able to hear me. Now am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Yes, Bushra is saying yes. Basil, please confirm me all. Who is here? Bushra, Basil, Mithun, Manisha, and Shazia. Please confirm me all. Yes, yes, yes. Basil को आ रही है मेरी आवाज, बुशरा को भी आ रही है, मनीषा, मिथुन, and Shazia. Please confirm me. As I was telling you that, yes, Manisha, you are not able to write on the keyboard. यस सर, Manisha, सर आपकी आवाज आ रही है। ओके फाइन बेटा, फाइन फाइन फाइन। आप माइक पे रहो, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो बेटा। So what he told you is that we must have the same number of equations for any number of variable, right? So मैंने बोला कि what is the general form of linear equation? It is ax plus by plus c is equal to 0. This is the general form of a linear equation in two variables, right? So using the same standard or general form, we have an equation a1x plus b1y plus c1. A1 can be any number, any real number, the coefficient of x. B1 can be any real number, coefficient of y, right? But we always remember that a1 or a or b1 should not be equal to 0. a1 and b1 should not be 0. a1 and b1 should not be 0. अगर a1 0 हो गया तो फिर x का टर्म खत्म हो जाएगा, b1 0 हो गया तो y का टर्म खत्म हो जाएगा. If a1 becomes 0, x will be erased out. If b1 becomes 0, y will be erased out, right? So to avoid that, we cannot have a1 or b1 to be 0, right? See now, the second equation is, let us suppose a2x and b2y and plus c2 is equal to 0. Same here, a2 cannot be 0 and b2 again cannot be 0. Apart from 0, a1 on a1, b1, a2, b2 can have of any value apart from 0. Apart from 0, a1, a2, b1, b2 can have of any value, can have of any value, right? So we are having two equations to solve this linear equation in two variables. बच्चों मान लो if the ratio of first coefficients of x a1 and a2, if a1 and a2 का ratio becomes equal to, sorry, actually not equal to b1 upon b2, if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, okay, then it would be, then it would be considered to be a unique solution. If in any linear equations in two variables, if the coefficients, ratio of the coefficients of x and ratio of the coefficients of y, if they are not equal, then definitely that would give you a unique solution. It means you will be having a value of x and a value of y. तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर x के कोफिशिएंट यानी a1 a2, y के कोफिशिएंट यानी b1 b2 का रेशियो अगर अनइक्वल है, इक्वल आपस में नहीं है, तो डेफिनेटली आपको एक इक्वेशन, एक x और y की वैल्यू मिलेगी. यू विल बी हैविंग अ सॉल्यूशन दैट वुड हैव a unique value of x and y. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, you will be having a unique solution, यानी कि you will be having a value for x and a value of y, unique solution, okay. And in this unique solution, if you draw the graph of the first and the second equation, these graphs will intersect to each other. The graph you will get will be intersecting lines, okay. तो एक इक्वेशन आपको एक ग्राफ देगा. जैसे मान लो ये पहले इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, समथिंग लाइक दिस. ये पहले इक्वेशन का हो गया. दूसरे इक्वेशन का ग्राफ समथिंग लाइक दिस मान लो. इन दिस टाइप where a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, you will be having a graph like this. They will intersect at a point, and the point at which they intersect will be having the value of x and the value of y. दिस इज कॉल्ड एज यूनिक सोल्यूशन. इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, जहां पे लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और इसका सोल्यूशन यूनिक होता है. और क्या समझ रहे हैं? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाते हैं. इंटरसेक्टिंग, प्लीज डोंट डू दिस. ये कौन कर रहा है? एंड
these are consistent pair of linear equations. Consistent कहलाते हैं. Consistent pair of linear equations. If a1 upon a2, b1 upon b2 not equal to each other, then it will be having a unique solution. It means you will be having a separate value of x and the fixed value of y. And the graph of these two equations will be intersecting lines, and this system of unit is called as consistent pair of linear equations. ठीक है? This will be called as consistent. यही first chapter में आपका यही सब है. ठीक है? Moving to the next one. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. If something appears like this, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, this would be called as no solution. Why? Because these equations will, who is doing this? Because these equations will form parallel lines. The graph of these equations will form a parallel lines, and this would be called as inconsistent. Inconsistent means you will be having a no solution. It means if you draw the graph of these two lines, I will show you. If you draw the graph of these two lines, y and x axis, you will be having a graph. The lines would be something like this. They will not intersect at any point, and if they not intersect at any point, they will be having no solution. And this is called as inconsistent pair of linear equations. What do we call as? We call this an inconsistent pair of linear equations, right? So a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. You will be having an inconsistent pair of linear equations, and in this case you will be having no solution. It means there will be no fixed value of x and no fixed value of y. Correct it? Isn't it? Is this clear to all? Yes. Very good. Bushra, Basil, Mithun, Manisha, Shazia and Deepak. All are understanding? Very good. In the third case, see, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is equal to c1 upon c2. If this is the case, then this would be having infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Infinitely many solutions means you will be having infinite number of solutions. As I mentioned in the first case is that if the line intersects at one point, you will be having a one solution for x and one for y. But if the lines intersect at infinite points, you will be having infinitely many solutions. So what is the case of infinite intersection? यानी कि किस केस में ऐसा पॉसिबल है कि लाइंस इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें? This is only possible when the lines coincide with each other. If the graph coincide with each other, the two lines coincide with each other, then the two lines will be intersecting at infinite number of points. If they intersect at infinite number of points, so we'll be having infinitely many solutions. Basil, got your answer? Why it is having infinitely many solutions? Why? Because they intersect at infinite number of points, and infinite number of points intersection possible only when the lines are coincident. Got it? Got it, Basil? And the lines are coincident. The graph of these two equations are coincident lines. And this is also a consistent pair of linear equations. Why? Because this also gives a solution. Infinitely many solutions also gives a solution, and unique solutions also gives a solution. Since the two cases gives a solution, so we have consistent pair of linear equation. And since the second case in which the lines are parallel, that gives no solution, so it is called as inconsistent. Right? Is this clear to all? Bushra, Basil, Mithun, Manisha, Shadya, Deepak.
Okay, now coming to the sheet. Coming to the sheet. देखो जो मैंने बताया, मान लो ये this is the equation. If you find a1 upon a2, here a1 is 1, a2 is 3, 1 upon 3, b1 upon b2 minus 2 upon 4. Since they are not equal, so this would be intersecting lines and unique solution. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. In the second case, C. In the second case, it is 1 upon 2, a1 upon a2 is 1 upon 2, this is 1, this is 2. 1 upon 2, a1 upon a2 is 1 upon 2, right? And b1 upon b2 is plus 2y upon plus 4, यानी कि 1 upon 2 plus 2 upon plus 4, this is also 1 upon 2. a1 upon a2 1 upon 2, b1 upon b2 1 upon 2, they are equal to each other. And c1 upon c2 is minus 4 upon minus 12. This is 1 upon 3. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, not equal to c1 upon c2. This is the second case, and in this case you will be having parallel lines and no solution. Isn't it? The third case, 2 upon 4, a1 upon a2 is 2 upon 4, यानी कि 1 upon 2, simple 1 upon 2 लिखो. In the second case, 3y upon 6y, यानी कि 1 upon 2. Third case, minus 10 upon minus 13 is again 1 upon 2. These three are equal to each other. a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. So these will be equal to each other, and this will give you an infinitely many solutions and coincident lines, and this will also consistent pair of linear equations in two variables. Isn't it? Correct है सबको? तो क्या मिला आपको? पैरेलल लाइंस के लिए a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal not equal to c1 upon c2. ठीक? कोइंसिडेंट के लिए तीनों आपस में इक्वल. बस ध्यान रहे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. कोइंसिडेंट और पैरेलल में डिफरेंस क्या है कि पैरेलल में c1 upon c2 इक्वल नहीं होगा और इसमें तीनों इक्वल होंगे. ठीक है. और उसमें तो बस खाली ये याद रखना कि a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2. बस इतना याद रखना है इस केस में, पहले वाले केस में, यूनिक सॉल्यूशन वाले में. ठीक है. अब मैं एक ही करके ग्राफ के साथ बताता हूं. चलो सी यूजिंग द ग्राफ. तो तीन मिले, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट. इंटरसेक्टिंग में क्या होगा? यूनिक. पैरेलल में क्या होगा? नो सॉल्यूशन. और कोइंसिडेंट में क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ठीक है. चलो कमिंग टू द एग्जांपल एंड ग्राफ. First is intersecting line. Let us see an example. 2x minus y is equal to 1 and 3x plus 2y is equal to 9. Okay. 2x minus y is equal to minus 1. So चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो पहले. 2x minus 5 is minus y is equal to minus 1 है, तो minus 1 को शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 1. दूसरा है क्या? 3x और प्लस 2y is equal to 9. राइट. इसको भी शिफ्ट कर लो. -9 इज इक्वल टू. ठीक बच्चों. इसमें देखो बेटा क्या, a1 की वैल्यू 2 होगी, a1 की वैल्यू 2 होगी, a2 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी. b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? -1. और b2 की वैल्यू क्या होगी? +2. और c1 की वैल्यू क्या होगी? +1. और C2 की वैल्यू क्या होगी? -9. वैल्यूज आपके पास आ गए. अभी आप रेशियो निकाल लो. पहले निकालो a1 upon a2, ये आएगा कितना? 2 upon 3. फिर निकालो b1 upon b2, ये क्या आएगा? -1 upon 2. फिर निकालो c1 upon c2, ये क्या आएगा? 1 upon 9. तीनों आपस में अनइक्वल. तीनों आपस में अनइक्वल. तो सिंस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so this would be a unique solution or intersecting lines. Let me show you the graph of these equations. Okay, how can we solve it? The first is 2x minus y is equal to -1, right? इसमें क्या करना है आपको? How to solve it? Take any of the variable,
एक्स वाई में से कोई एक वेरिएबल को कंसीडर करो और उसकी वैल्यू को अज्यूम करो लेट समथिंग, मान लो x इज इक्वल टू 0. If x is 0, then what would be 0 minus y is equal to minus 1, तो यानी कि y is equal to 1 आएगा. x 0 पे y 1. इसमें इसके बाद मानो लेट x is equal to 1 मान लो, तो क्या होगा 2 into 1 minus y is equal to minus 1 and minus y is equal to minus 1 और minus 2 यानी कि minus 3. तो y is equal to 3. y is equal to 3. तो x 0 तो y 1, x 1 तो y 3. ये एक मिल गया. दो वैल्यूज चाहिए कम से कम आपको. 3 में चलेगा तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. अब सेकंड इक्वेशन को पुट किया. पहले इसमें x की जगह पे 3 पुट किया तो क्या होगा 3 into x, 3 into 3 9 और प्लस 2y is equal to 9. तो पहले 2y equal to 9 minus 3x निकाल दिया. पहले क्या किया, पहले y की वैल्यू निकाली 2y equal to 9 minus 3x. 3 से जाके माइनस हो जाएगा. ठीक. अभी y इक्वल टू क्या होगा 9 minus 3x upon 2. 9 minus 3x upon 2. अब x की जगह पे पहले 3 पुट किया तो क्या होगा 9 minus 3 into 3 upon 2 यानी कि 9 minus 9 upon 2 यानी कि 0. तो x y कितना आ गया 0. इन द सेकंड केस y की जगह x की जगह पे -1 पुट किया. देखो इसमें सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एक वैल्यू x और y में से किसी भी एक को, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को लो. ज्यादातर लोग x को लेते हैं. किसी एक को लो, उसकी वैल्यू को अज्यूम कर लो. x 0 होगा तो क्या होगा y निकाल लो, x 1 होगा तो y निकाल लो. कोई दो वैल्यू पे, दो x की दो वैल्यू पे y की वैल्यू निकाल लो. जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, पहले x 0 पे निकाला 1, फिर x 1 पे निकाला, यहाँ पे मैंने निकाला 1 पे 3 आती है और 2 पे 5 आया था जो इसने बताया. ठीक, तीन वैल्यू जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. फिर सेकंड केस में x को -1 माना तो मान लो -1 यहाँ यहीं से कर लो. 9 into 9 minus 3 into -1 upon 2 यानी कि 9 plus 3 upon 2, 9 3 12 upon 2 is 6. -1 पे y की वैल्यू 6 आ गई. तो दो वैल्यूज आपको मिल गए. ग्राफ बनाने के लिए कम से कम x की दो वैल्यू, y की दो वैल्यू चाहिए कम से कम. ठीक है, पहले क्वेश्चन ग्राफ बनाते हैं. देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 थी पहले वाले में. ठीक है, आते हैं. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये हो गया है ना. x की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 है x की वैल्यू, इसके 1 आगे बढ़ो तो y की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी 0 1. तो एक पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट कौन सा हुआ, दूसरा पॉइंट क्या 2 और 5 था ना. तो x के 2 पे गए, ये रहा 2 है ना, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8. ठीक, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5. ठीक, तो सेकंड केस में क्या था x2 y5, x की जगह x पे 2 गए और y पे 5 गए. ये रहा ये 5. चेक निकल गया. इसको ना इसने ऐसे लिया है, 1 लिया, 1 2 3 4 5 ऐसे लिया. यहाँ पे 1 2 3 4 5 2 पे गए, x से 2 पे गए, y पे 5 पे गए तो यहाँ पे आ गए. तो फर्स्ट का दोनों पॉइंट मिल गया हमको. इसको मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट्स को मिला लिए. ये ना दोनों पॉइंट्स मिल गए तो पहली लाइन तुमको मिल गई. दूसरे सेकेंड इक्वेशन के कौन कौन से पॉइंट्स थे, सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट थे 3 0 -1 और 6. 3 0 -1 और 6. 3 0 यानी कि 3x पे और y पे 0. 3x पे y पे 0, x पे 3, यहाँ पे x पे 3 और y पे 0. ये हो गया, ये पॉइंट बन गया. क्योंकि x पे 3 है, y पे तो 0 है नहीं. ऊपर जाना होगा तब जब y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी. यहाँ पे y तो 0 है, ये पहला निकल गया. सेकंड वाला कौन सा पॉइंट है बेटा, सेकंड वाला पॉइंट था -1 और 6. -1 और 6 देखो, x की गए पीछे -1 ये रहा और 6 कहाँ है, देखो ये ऊपर 6 है. 5 के बाद ये 6 आएगा. ये 6, दो पॉइंट्स मिल गए, ये और ये. अब इन दोनों को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया. लेट मी ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स. अब ये दोनों पॉइंट्स कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 1 आई है और वहां पे y की वैल्यू क्या आई 3 आई है. जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3. तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3. इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया. इस पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन का दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, इजंट इट? सबको समझ आया? एवरीबॉडी इज गेटिंग इट? बुशरा, बासिल, मिथुन, मनीषा, शादिया, दीपक, everybody understanding this or not? It is clear to all? Okay, let me come to the next topic. Very good, Basil. Next is parallel lines. इस केस में क्या करते हैं? a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 and should not be equal to c1 upon c2. Parallel lines. Very good, Bushra. ठीक. Let us suppose the two examples are x plus 2y is equal to 4 and 2x plus 4y is equal to 12. ठीक है. इसमें भी वही काम करेंगे. यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या, देखो चेक कर लेते हैं पैरेलल लाइंस वाले हैं कि नहीं है. देखो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a1 की वैल्यू यहाँ पे है 1, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a2 की वैल्यू है 2 और a1 a2. ठीक है. b1 की वैल्यू कितनी है? b1 की वैल्यू 2 है. यहाँ पे देखो b1 की वैल्यू 2y में 2 है और यहाँ पे 4y में 4 है. b2 की वैल्यू कितनी है? 4. c1 की वैल्यू क्या है? पहले वाले में 4 है, दूसरे वाले में 12 है. ठीक. अब मैंने क्या किया? कैलकुलेट किया. a1 अपॉन a2 निकाल के चेक किया, कितना आया? a1 अपॉन a2 1/2. फिर निकाला b1 by b2, ये भी कितना आया? 2/4 यानी कि 1/2. फिर निकाला c1 by c2, ये कितना आया? 4/12 यानी कि 1/4. यहाँ पे देखो a1 by a2 1/2 इक्वल टू b1 upon b2 1/2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 1/3. तो यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है, पैरेलल लाइंस होंगे. चेक कर लेते हैं. अब वैल्यू क्या है ये वो निकाल के चेक कर लेते हैं. एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं. देखो पहले क्वेश्चन क्या था? x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. तो 2y इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस एक्स और y इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस एक्स अपॉन 2. पहले x की जगह पे 0 पुट किया, क्या y इज इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस 0 अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2 यानी कि 2 आ गया. फिर x की जगह पे 4 पुट किया, 4 माइनस 4 अपॉन 2 y 0 आ जाएगा. हो गया. दूसरे इक्वेशन में क्या है? 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 यानी कि क्या करना है आपको? लिखना है 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 4y और x इक्वल टू 12 माइनस 4y इक्वल टू किसी को भी, मैंने बोला किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. यहाँ पे y की वैल्यू कुछ मान लो. देखो y की वैल्यू किसने क्या माना? 3 माना है, कोई दिक्कत नहीं है. तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 3 सॉरी 4 इंटू 3 4y है ना, 4 इंटू 3 अपॉन 2 यानी कि 12 माइनस 12 अपॉन 2 12 माइनस 12 अपॉन 2 0 आ गया. 12 माइनस 12 है 0, तो ये y x 0 हो गया. दूसरे केस में क्या माना इसने? y को 0 मान लिया. तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन 2 यानी कि 12 माइनस 0 अपॉन 2 यानी कि ये 6 हो गया. x की वैल्यू 6 आ गई. ठीक है. अभी वैल्यूज आ गया आपको. देखो 0240 0240 पहली इक्वेशन बात कर रहा हूँ. 0240. ठीक है. पहले इक्वेशन में 0240 यानी कि x पे 0 है, y पे 2 है, तो ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया. और दूसरे पे क्या है? 40 यानी कि x पे 4 है, y पे 0 है. ये दो पॉइंट्स मिल गए. दोनों को मैंने मिला दिया. ये रहा, मिला दिया मैंने. पहला लाइन मिल गया आपको. इन द सेकंड केस पॉइंट्स क्या क्या थे आपके? देखो चेक कर लो एक बार. 0360 03 और 60 इसको देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं. 03 और 60 03 ये रहा 0 x पे y पे 3 चला जाएगा और 60 यानी कि x पे 6 y पे 0. अब इन दोनों को मिला लो आप. तो ये लाइंस किस तरीके की आ गई देखो. और दिस लाइंस बी पैरेलल. क्या ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं? सिंस दीज लाइंस आर आपस में पैरेलल सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन. एक्स वाई की सॉल्यूशन तभी मिलती है जब एक्स वाई इंटरसेक्ट यानी कि लाइन से इंटरसेक्ट करती है. इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो नो सॉल्यूशन. देयर विल बी द लाइंस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. तो पैरेलल लाइंस वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत कम मिलेंगे, ज्यादा करके मिलेंगे आपको कंसिस्टेंट यानी कि यूनिक सॉल्यूशन या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि द लाइन शुड बी
कोइंसिडेंट, लाइन शुड बी ओवरलैपिंग ईच अदर। ठीक, तो पहले केस में इक्वेशंस क्या दिए हैं बेटा, 2x + 3y = 9। इसमें तीनों इक्वल होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में? बोलिए बोलिए बोलिए। 2x + 3y = 9, तो ए क्या होगा, a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, b1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, c1 की वैल्यू कितनी है, 9 है, a2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, b2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, c2 की वैल्यू कितनी है, 18 है, 18। ठीक है ठीक है, ओके। तो देखो आगे क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/4, सो इट वुड बी 1/2, b1/b2 is equal to 3/6, it will be 1/2 again, and c1/c2 is equal to 9/18. It will give you 1/2 again, so 1/2, 1/2, 1/3, 3 are equal. It means it is a coincident line, and it is a infinitely unique many solutions. First case में first graph क्या है, 2x + 3y is equal to 9. If you find 3y, it will give you 9 minus 2x, 9 minus 2x, and y is equal to 9 minus 2x upon 3. हाँ हाँ, आया सबको समझ? अभी क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट किया मैंने, तो y निकाला, तो क्या होगा, y = 9 minus 2 into 0 upon 3. It means 9/3, and the answer would be 3. In the second case, y is equal to 4.5 माना है, कोई दिक्कत नहीं, मान लो, सॉरी, x = 4.5 माना, कोई मत मानने दो, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो 9 minus 2 into 4.5 upon 2, 9 minus 9 upon 0, तो ये होगा 0। 9 minus 9 upon 2, so 4.5 into 2 will be 9, 9 minus 9 upon 0, 2, that will give you 0, so y 0 आ गया। वेरी गुड, दो वैल्यूज आपको मिल गया। अच्छा, सेकंड केस में क्या बेटा, 4x + 6y = 18, यानी कि 6y = 18 minus 4x, और y = 18 minus 4x upon 6, ये आ गया। अब यहाँ पे हमने x को 0 माना तो y 3 आएगा, x 3 माना तो y 1 आएगा, ये चेक कर सकते हो आप। देखो चेक कर लेता हूँ मैं, y = 18 minus 4 into 0 upon 6, 18 minus 0 upon 6 is 3। और सेकंड केस में क्या होगा, y = क्या माना, x = क्या माना, 3 माना। अगर आपने x 3 माना तो क्या होगा, 8 minus 4 into 3 upon 6, it will be 18 minus 4 3 are 12 upon 6, यानी कि it will be give you 2। 18 minus 4 3 are 12, 3 3 3, 4 3 are 12 upon 18 minus 6, 6 upon 6, it will be 1 1। ठीक, तो 034.50 चेक कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 034.50, 0303, पहले केस में क्या है, 03 यानी कि x0 y3, ये आ गया। और दूसरा क्या है, 4.5 और 0, x की वैल्यू 4.5 यहाँ पे और 0, ये आ गया। सेकंड केस में क्या है, देख लो देख लो देख लो देख लो, 0331, 0331, 0331, 0331। ओके, x 0 है, y 3 है, ये वही सेम है, 31, x पे 3 है, y पे 1 है। अच्छा, अब जब हम इन दोनों को ग्राफ को मिलाएंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि एक लाइन आएगी आपको, एक सीधी सी लाइन आएगी, दोनों लाइन, दोनों सारे पॉइंट उसी के ऊपर हैं, तो lines will become coincident and you will be having infinitely many solutions, and this is also consistent, isn't it? सबको क्लियर हो गया? बुशरा, बासिल, मिथुन, मनीषा, शादिया एंड दीपक, सबको क्लियर है बच्चों? ओके ओके बुशरा। Now coming to the topic, coming to the exercise, coming to the questions, right? Find two solutions for each of the following equations. तीनों इक्वेशन के दो दो सॉल्यूशंस बनाने। क्या करना है बेटा आपको, 4, देखो क्या लिखा है, 4x + 3y = 12 लिखा है। आप लोग देखते रहिए, बस मैं कर रहा हूँ। क्या लिखेंगे, 3y = 12 minus 4x, और मैं क्या करूंगा, y लिखूंगा 12 minus 4x upon 3, ये निकाल लिया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या मानू बताओ, यहाँ पे ऐसा मानो कि छोटी सी वैल्यू है, x को तुम अगर 0 कर दो, ठीक है, तो y क्या होगा, 12 minus 4 into 0 upon 3, तो ये 4 into 0 तो 0 हो गया, तो 12 upon 3 कितना जाएगा, 4। x के 0 होने पे y कितना हो गया, 4, ये पहला निकल गया, फर्स्ट सोल्यूशन निकल गया। सेकंड सोल्यूशन देखते हैं इसका, दो सोल्यूशन निकालने से भी, दूसरा सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। x की जगह पे तुम क्या मान लो, 1 मान लो, 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 12 में अच्छा नहीं, फिर कटेगा नहीं, तो फिर तुम क्या मानो, क्या मानो, क्या मानो, क्या मानो,
ऐसा कुछ मानो कि कट जाए 12-3y/4 12-3 है 3y/4 क्या कर रहे हो कौन सा वाला अच्छा ओके वैसे एक्स वाले हाँ वो भी ठीक है वो भी ठीक है मैं इससे कर रहा हूँ तो ऐसे करने को मेरे को तो एक्स में क्या मान लो यहाँ पे 0 मान लिया माइनस में मान लो तो +4 वर्सेस होगा ओके 4 to 8 ये भी नहीं होगा और 4 to हाँ तो फिर 3 मान लो एक्स को 3 मान लो ठीक है बेटा वही कितना होगा 12-4 × 3 4 × 3 12 12 - 12 0 तो 0 4 3 0 ये दो सॉल्यूशन पहले का निकल गया ग्राफ नहीं बनाना है अभी सेकंड केस का निकालना आपको 2x + 5y = 0 यानी कि देखो 2x + 5y = 0 बच्चों क्या आप ऐसा लिख सकते हो दैट 2x = -5y या क्या आप ऐसा लिख सकते हो x = -5/2 × y ये तो रिलेशन निकल गया अब क्या करिए आप y को वैल्यू y मान लीजिए लेट y = 0 जब y 0 तो x भी 0 पूरा 0 हो जाएगा सेकंड केस में सेकंड सॉल्यूशन में क्या मान लो y = 2 मान लो तो x = क्या होगा -5/2 × 2 -5/2 × 2 तो 2 से 2 कैंसिल तो -5 आ जाएगा ये दो सॉल्यूशन आपके हो गए सेकंड केस का भी हमारा भी डन थर्ड देखो 3y + 4 = 0 3y + 4 = 0 तो 3y + 4 = 0 यानी कि 3y = -4 ये तो डॉट बनेगा ये तो डॉट बनेगा तो y = -4/, ये डॉट है ये एक लाइन नहीं बनेगा ये एक डॉट बनेगा पॉइंट बनेगा ठीक है तो ये थर्ड का भी हो गया 3y + 4 = 0 तो 3y = -4 तो y = -4/3 ये थर्ड का भी हो गया सभी को क्लियर हुआ बुशरा बासिल मनीषा मिथुन दीपक शादी जो भी बच्चे हैं सभी को क्लियर है बेटा नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 4.2 कमिंग टू एक्सरसाइज 4.2 ओके फर्स्ट क्वेश्चन which of one of the following options is true and why y = 3x + 5 has y = 3x + 5 has यूनिक सॉल्यूशन ओनली टू सॉल्यूशंस इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन कौन सा सही होगा बताओ यूनिक या दो सॉल्यूशन या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन अब यहाँ पे एक ही इक्वेशन है ना तो जब इक्वेशन एक हो तो सॉल्यूशन इनफिनाइट होंगे ना आप y की वैल्यू पुट करते चले जाओ x की वैल्यू आता चला जाएगा सिंपल है दो इक्वेशंस जब होते हैं तब हम कंपेयर करते हैं a1/a2 को b1/b2 से और c1/c2 से if we do not have two equations then we do not need to compare actually we cannot compare right so if we have only one equation we cannot have only a unique solution or only two solutions we can have infinite number of solutions very good Bushra good Bushi question number 2 write four solutions for each of the following equations चार solutions लिखने हैं 2x + 5 = 7 और दूसरा 5x + y = 9 and x = 4y इससे चार सॉल्यूशंस लिखने हैं मैं करूं 2x + y = 7 पहला क्या लिख सकते हो बेटा y = 7 - 2x ये आ गया लिख दिया आपने अब यहाँ पे x की वैल्यू को मान लो 0 पुट कर लो तो y कितना जाएगा y = 7 - 0 यानी कि 7 ये पहला इक्वेशन पहला हो गया दूसरा क्या होगा बेटा x की जगह पे आप अगर 1 पुट करोगे तो y की जगह पे कितना जाएगा 5 सिंपल हो गया है ना
7 माइनस टू इंटू वन, 7 माइनस टू यानी 5। ठीक, ये निकल गया। सेकंड बताओ बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या था, तो बताएगा मुझे सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई एक्स इक्वल टू 9। गुड बासिल, टेक x इज इक्वल टू 0। ओके, y इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस पाई एक्स। तो अगर मैंने x को 0 मान लिया तो y कितना हो जाएगा, 9। अगर मैंने x को x को क्या मान लूं, 2/पाई, ये तो तुम्हारा ग्राफ में आएगा ही नहीं है। तो x को मान लेता हूँ y इक्वल टू 9 माइनस 2x 0। x क्या हुआ, 5 0 8.5 नहीं, ऐसा नहीं करते। तुम x को यहाँ पे मान लो 7/22। y इक्वल टू क्या हुआ, 9 माइनस पाई 22/7 इंटू 7/22। तो x 0, अच्छा 9 माइनस 1 8 हो गया ना। ठीक, तो x 0 पे y 9, x 22/7/22 पे y 8। ठीक है, क्योंकि ग्राफ आपको बनाना नहीं तो मैंने ग्राफ के टर्म में सोचा नहीं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू 4x था, क्या था। थर्ड है x इज इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू 4y। पहले x 0 मानोगे तो y 0 हो जाएगा, कोई शक नहीं। अगर x को तुम 2 रखोगे, x को 4 रखोगे, सिंपल। x को 4 रखोगे तो y 1 हो जाएगा, सिंपल हो गया। x 0 तो y 0, x 4 तो y 1। दैट्स इट, इजंट इट? क्लियर है सबको? बासिल, बुशरा, मनीषा, मिथुन, जो भी अंशाध्या, दीपक। कमिंग टू द नेक्स्ट, अच्छा 13 तो भी बाकी है ना। गुड बासिल, गुड बुशरा। क्वेश्चन नंबर 3, check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। चेक करना है कि x minus 2y is equal to 4 का सोल्यूशन है या नहीं है। सबसे सिंपल चीज चेक करने के लिए क्या है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें तुम क्या करो, x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू निकालो। अगर y की वैल्यू वही आ जाती है तो फिर सही। हाँ बच्चों, चलो तो क्या चेक, 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, 1 नहीं होगा। चलो बुशरा, बासिल, डू यू अग्री? डू यू अग्री विद बुशरा दैट 1 इज नॉट द सोल्यूशन? एक्स पे तुमने 0 पुट किया तो y कितना आएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो x पे 0 पुट किया तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो y कितना आएगा, 4 अपॉन माइनस 2 माइनस 2 आएगा।
और यहाँ पे 2 दिया तो ये सही बात है, ये नहीं है। सेकंड वाला भी नहीं है, सेकंड में x के जगह पे 2 पुट किया तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2y माइनस 1। सेकंड वाला भी नहीं। वेरी गुड बुशरा, गुड बुशरा, वेरी गुड। थर्ड बताइए। बासिल, वेर आर यू? मनीषा, वेर आर यू? शादिया, दीपक, मिथुन। थर्ड इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। थर्ड वाला है, लेट मी चेक थर्ड वाला। 4 और 0, तो x की जगह पे 4 पुट किया तो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4। ठीक है, वेरी गुड। यस, थर्ड वाला सोल्यूशन है, थर्ड वाला है, थर्ड वाला है। सॉरी, फोर्थ वाला चेक करिए। √2 एंड 4 √2, 4 इज नो। अच्छा, लेट मी चेक। √2 पुट किया तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस √2, तो माइनस ना ना नहीं होगा, बिल्कुल 4 वाला नहीं होगा। चलो फिफ्थ वाला बताइए। 1 1, ये भी नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा। 1 1 के तो 1 हो, दोनों 1 नहीं हो सकता ना। इक्वल तो लिख नहीं रहा है यहाँ पे। 2y इज इक्वल टू होगा x माइनस 4 अपॉन 2, तो ये तो होगा ही नहीं। वो 5 इज नो। वेरी गुड बासिल, वेरी गुड बुशरा, both are very good, both are very attentive, very I mean obedient and attentive and serious in the class. I appreciate you both. चलो क्वेश्चन नंबर 4। find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 in a solution of the equation। देख बेटा, सोल्यूशन, किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन होने का मतलब ये है कि x और y की जो भी वैल्यू होगी उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगी। अगर लिखा है बेटा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर लो, तो क्या करोगे? 2 इंटू 2 और प्लस 3, y की जगह पे लिखा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू आएगा 2 4 7 3 7, k इज इक्वल टू आएगा 7। सिंपल। गुड खुशी, वेरी गुड। k की वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी। करेक्ट है? सभी को क्लियर है? बोलो। चलो बेटा, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन के दो टाइप है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिंपल है, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in which in two variables which has a unique solution, it is called as a consistent pair of linear equation. A pair of linear equation in which the two variables which has no solution is called as inconsistent pair of linear equation. And a pair of linear equation in two variables which has infinitely many solution is also called as consistent pair of linear equation. दो ही चीज है मेन, एक है consistent pair of, दूसरा है inconsistent pair। तो कंसिस्टेंट में यूनिक भी आ गया, जिसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और उसी कंसिस्टेंट में इन्फिनिटली मैनी भी आ गया, जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c अपॉन c। कंसिस्टेंट हमेशा ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो जिसमें सॉल्यूशन आपको मिलेगा या यूनिक में या इन्फिनिटली में सॉल्यूशन में। यूनिक में सारे अनइक्वल, इन्फिनिटली में सारे इक्वल, सिंपल। और दूसरा है इनकंसिस्टेंट, जिसमें पैरेलल मिलेंगे आपको, इनकंसिस्टेंट जिसमें आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। इसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन। और इस केस में लाइंस पैरेलल होंगी, और यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी।
और इन्फिनिटली में सोल्यूशन वाले केस में लाइंस जो होंगी वो को इंसिडेंट होंगी। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है बेटा वो बनता है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और सॉल्यूशंस के दो मेथड हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो डिफरेंट मेथड से पहला कहलाता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, मेथड्स ऑफ solutions of linear equations into variables। पहला कहलाता है बेटा अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में तीन डिफरेंट मेथड्स पढ़ने होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, elimination method and cross multiplication। If you will be interested to I mean know these methods, तो I will definitely teach you। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो मैं नहीं बताऊं, क्योंकि आपके ये सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में खाली ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन नहीं है। ठीक है, आप इंटरेस्टेड होंगे तो बताइए, मैं ये सारे मेथड्स पढ़ाऊं या ग्राफिकल पे सीधा स्विच करूं? क्या मैं एडिशनल मेथड्स पढ़ाऊं या ग्राफिकल पे स्विच करूं? व्हाट डू यू से? शुड वी डू दिस और शुड वी नॉट? एनीबडी? Basil, Manisha, Bushra, anybody who is eager to know these topics, these methods, I will definitely make you teach. But if you don't, I will not. Sir, you should teach. I should teach. I know I should teach. But if you are interested, I'm asking, are you interested? बासिल या बुशरा, मनीषा, जो भी हैं यहाँ पे, दीपक, मिथुन, सभी लोग, पता नहीं कौन ऑनलाइन है कौन ऑफलाइन है। कई बार ऐसा होता है कि ऑफलाइन शो करता है बट ऑनलाइन होते हैं, रिप्लाई करते होते चैट बॉक्स पे। आई डोंट नो व्हाई, हाउ इट हैपेंस। यस सर, आई एम इंटरेस्टेड। बुशरा एंड मनीषा, प्लीज लेट मी नो, आर यू इंटरेस्टेड? Are you interested? Reply in the chat box or open your mic. Whatever way you want to tell me. Manisha is interested, I guess. Manisha definitely not interested. She is very obedient and very attentive girl. Yeah, yes, Manisha. Yes, sir, I'm interested. Yes, Manisha. Are you interested? Yes, sir. Very good, beta. और बुशरा भी इंटरेस्टेड है? बुशरा, आई डोंट गेट योर रिप्लाई। Because these methods are very interesting methods। एक्चुअली ना ग्राफिकल मेथड एक बड़ा बेसिक सा मेथड है। यस, बुशरा भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो मैं आपको ये सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ। देखो क्या करना है, सिंपल सिंपल। जिस मेथड से अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, वो सब्स्टिट्यूशन चल रहा था। देखो, लेट मी टीच यू, लेट मी एक्सप्लेन यू। द फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, इफ यू हैव टू इक्वेशंस, कोई सा भी दो इक्वेशन ले लो, कोई सा भी दो इक्वेशन ले लो। मैं यहां से जिसमें पेयर ऑफ इक्वेशन तो वो ले लो। लाइंस पैरेलल हैं, ये मत लो लाइंस। कहाँ चले गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? मुझे मेरे स्लाइड्स कहाँ चले गए सारे? वेयर आर माय स्लाइड्स? हाँ, इसमें कोई सा भी ले लो। जैसे मान लो पहले लेता हूँ, x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो और थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू बीस। पहले लेता हूँ x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 20।
अब इसमें क्या करना होता है कि आप किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते दूसरे में, ठीक है। जैसे देखो, मान लो पहले इक्वेशन को लेता हूं मैं। इस इक्वेशन से मैंने निकाल ली, काम करो, मैं फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर करता हूँ। इस इक्वेशन से मान लो मैंने निकाल ली x की वैल्यू, कितनी है x की वैल्यू 2y आती है ना। इस इक्वेशन से x की वैल्यू मैंने 2y निकाल ली। अब मैं फर्स्ट सेकंड में पुट करूंगा, अब मैं सेकंड में इस x इज इक्वल टू 2y को पुट करूंगा। ये वन सा इक्वेशन, ये टू इक्वेशन, तो क्या आएगा बेटा 3 इंटू सॉरी x इज इक्वल टू 2y, तो 3 इंटू 2x, ठीक, x इज इक्वल टू 2y पुट कर रहा हूं, तो 3 इंटू 2y सॉरी 3 इंटू 2y और प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक। तो ये 4y और 3 इंटू 2y कितना होगा 6y और प्लस 4y इज इक्वल टू 20, कितना हुआ 6y प्लस 4y कितना हुआ 10y इक्वल टू 20, y कितना आ गया, सिंपल। अब x निकाल लो, जब y 2 आ गया देन x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू y इन 2 इंटू 2 यानी कि 4, x आ गया 4, y को आ गया 2। दिस इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक इक्वेशन का को यूज करो, उससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, उस वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड वाले में पुट करो और सेकंड स्टेप पर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद उसको यूज करके फर्स्ट के निकाल लो। सिंपल है, समझ में आया नहीं आया बोलो। इसी सब्स्टिट्यूशन को नेक्स्ट एलिमिनेशन है और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इन तीनों को अगली क्लास में हम लोग करेंगे डिटेल में, इसके बाद में दूसरी क्लास रहेगी, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग सेकंड सब्स्टिट्यूशन के बाद एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों को डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई सवाल तो नहीं पूछना है, कोई क्वेरी हो कुछ पूछना हो तो बताइए। मनीषा, बासिल, बुशरा, बाकी और भी जो ऑनलाइन है वो सब बताएं। हाँ बोलिए, किसी को नहीं पूछना है कुछ, वो सब कुछ समझ आ गया है ना। एवरीबडी अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, लेट मी नो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो या स्माइली बनाओ, कुछ तो बताओ। इसके बाद वाले मेथड्स एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, आज की क्लास में नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, ठीक है, चलो।